واہ، تو تو ان فرق دونوں تو کوئی بھی قوموں نے نہیں ہوا. مسیحیوں پہ بڑا ظلم کیا، ہندوؤں نے جی بھی جی اور مسلمانوں نے بھی. اور دیکھو دونوں ہی جو ہے نا موت پینے والی قومیں، بالکل بالکل دونوں ہی جو ہے نا موت پینے والی قومیں، بالکل بالکل دونوں ہی جو ہے نا موت پینے والی قومیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مسیحیوں کو واسطہ ان ایسے ظالموں سے بڑا ہے جو جانور کے پیشاب کو، اس کے یورن کو متبرک تو مانتے ہیں، انسان کو جو ہے یہ سپیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان کو جو ہے تھوڑی سی وہ گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان کو قتل کرنے پر تیار ہے، اور اونٹ کے پیشاب کو بھی جو ہے نا یہ اتنی اہمیت دیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اور ظلم کی یا جبر کی انتہا کیا ہو. تجھ کو میں نے علمی جواب دے دیا، اب میں اپنے طریقے سے جواب دینے لگا ہوں، وہ بھی علمی ہوگا انشاءاللہ. تم نے بولا ہے کہ یہ موت پینے والی قوم ہے، یہ پیشاب پینے والی. ذرا سن، متی چیپٹر 15 ورس 2 کے مطابق بغیر ہاتھوں کو دھونے کے کھانا کھانے والی قوم. مرکز چیپٹر 7 ورس 2 کے مطابق ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھانے والی قوم. اخبار چیپٹر 11 ورس 22 کے مطابق ٹڈیاں عام جھینگڑ کھانے والی قوم ہے. خروج چیپٹر 12 ورس 20 کے مطابق جانوروں کے اندرونی اعضاء کھانے والی قوم ہے تو. یوحنا چیپٹر 6 ورس 55 کے مطابق یسوع علیہ السلام کا خون بلڈ کھانے والی پینے والی قوم ہے تو. کتاب استثناء چیپٹر 14 ورس 26 کے مطابق شراب پینے والی قوم ہے تو. ایوب کی کتاب چیپٹر 20 ورس 15 کے مطابق سانپ کا زہر پینے والی ہے قوم تو. اخبار چیپٹر 15 ورس 19 کے مطابق ناپاک عورت کے ناپاک ہاتھوں سے ناپاک روٹیاں کھانے والی ہے قوم تو. ایک کتاب استثناء چیپٹر 23 ورس 20 کے مطابق سود کھانے والی ہے قوم تو. کتاب آف ایزائیا چیپٹر 66 ورس 11 کے مطابق یروشلم کے پستان سے برسٹ سے دودھ پینے والی ہے قوم تو. حزقیل کی کتاب چیپٹر 4 ورس 11 تا 12 کے مطابق نجاست سے روٹی پکا کر کھانے والی ہے قوم تو. اور ہم کو کہہ رہا ہے پیشاب پینے والی قوم ہے. اور میں جب ہم ان لوگوں کا اعتراض یہ ہے بشارت مغل کا خاص کر کہ جو مسلمان ہے نا یہ پیشاب پینے والی قوم ہے. دونوں ہی جو ہے نا موت پینے والی قومیں، بالکل بالکل دونوں ہی جو ہے نا موت پینے والی قومیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، یہ اسلامک انجینئر کے ایک شارٹ اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر اس کتے نے بکواس کی تھی. ٹھیک ہے، بشارت مغل نے. اور یہ حدیث جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 682030014192 اور 4610 5781 6802 اور 6899، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 4353 اور 4354، نسائی شریف کی حدیث نمبر 306 اور 307 اور 4032 اور 4040، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 8580، مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 3539۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کچھ لوگ جن کے پیٹ بھر گئے تھے، پھول گئے تھے، انہیں استسقاء ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے کے اونٹوں کے پاس جاؤ، ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو وہ صحت یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے، اور بعد میں وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ یعنی کہ مفہوم آپ نے سن لیا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ جو مرتد تھے، نام کے مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافق لوگ تھے، ان لوگوں کے پیٹ پھول گئے، پھول گئے، استسقاء ہو گیا، بیماری لگ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے پیو، تو انہوں نے پیا تو وہ ٹھیک ہو گئے، اور بعد میں وہ مرتد ہو گئے۔ یہ لکھا ہوا ہے اس حدیث میں۔ لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، بشارت مغل آ جا، اوپن چیلنج ہے تم کو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ بشارت مغل تم ثابت کرو کہ نبی پاک نے مشروب کی طرح اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا ہے۔ اوپن چیلنج، قیامت تک کے لیے
तमाम क्रिश्चियनों को, तमाम गैर मुसलमानों को, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पे ये फरमाया हो कि जैसे तुम चाय पीते हो, दूध पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोई भी चीज खाते पीते हो, इस तरह तुमने यूज करना है कैमल यूरिन को। नहीं, ओपन चैलेंज, ये साबित नहीं कर सकते। दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज बशारत मुगल, आंखें खोल के आ इधर, सामने बैठा हूं मैं इधर तुम्हारे लिए। दूसरा चैलेंज तुमको ये है कि साबित कर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत मुसलमान को पीने का हुक्म दिया है पेशाब। ओपन चैलेंज टू बशारत मुगल, तुम साबित करो कि पूरी इंसानियत को, पूरी उम्मत मुसलमान को पीने का हुक्म दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैमल यूरिन। नहीं, जुबैर भाई आए हैं, इनको इनवाइट कर लें यार। अस्सलाम वालेकुम जी जुबैर भाई। वालेकुम सलाम अवैस भाई, खैरियत से हैं? जी जुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम, आप म्यूट हैं। जी वालेकुम सलाम, खैरियत? फिर से रिमूव हो गए, पता नहीं कोई फनी खराबी हो रही है यार, इस वजह से वो ऐड नहीं हो पा रहे। चले मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जुबैर भाई, फिर से रिमूव हो गई यार, पता नहीं क्या हो रहा है यार इधर। चलो 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, आगे सिर्फ और सिर्फ जो लोग मुर्तद हो गए थे बस उन्होंने पिया है कैमल यूरिन। ठीक है, जो लोग मुर्तद हो गए थे उन लोगों ने ऊंट का पेशाब पिया है दूध में मिलाकर, वो भी दवा के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर, और वो सेहतियाब भी हो गए पीने से। इस वक्त जो इन लोगों को बीमारी थी, इसका इलाज सिर्फ ऊंट के दूध और पेशाब में ही था, खास कर इन लोगों के लिए कि वो मुर्तद हो गए थे बाद में। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। बहुत से सिरप ऐसे हैं जिनमें अल्कोहल, शराब ऐड होती है मेडिसिन के तौर पर। वैसे शराब जो है ना वो हराम है, लेकिन बीमारी की हालत में आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और बहुत सी मेडिसिन में बेहोशी की दवा यानी नशा इस्तेमाल होता है ताकि मरीज आराम कर सके, बल्कि ऑपरेशन जब होता है तो डायरेक्ट नशा दिया जाता है कि मरीज को दर्द कम हो या महसूस ना हो। ठीक है, और भी रेफरेंस जो है एक स्क्रीन के ऊपर भी आपके सामने इस वक्त है कि सांप के जहर से भी दवा बनती है। ये आपके सामने स्क्रीन के जुबैर भाई दोबारा आए हैं, इनको दोबारा ऐड करते हैं। सांप के जहर से भी दवा तैयार होती है। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि यार कोई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनसे ये दवाइयां बनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपको सबसे पॉपुलर मिसाल देता हूं, मसलन जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई खुदा के कहने के ऊपर, ठीक है, तो उनकी कौम ने क्या किया? उनकी कश्ती में नजासत कर दी, उनकी कश्ती में नजासत कर दी। तो उन लोगों को खुदा ने जिल्द की बीमारी लगा दी। तो जिल्द की जब बीमारी लगी तो उन लोगों को उस जिल्दी बीमारी से शिफा भी उसी नजासत से मिली है। जैसा कि हदीस में लिखा हुआ है कि एक ऊंट के दूध और पेशाब की वजह से कुछ लोगों के जो फूले हुए पेट जो है ना वो दुरुस्त हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं और आपको ऐसे रेफरेंस दूंगा कि इन लोगों का जो एतराज है ना वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। लेकिन आपने जब गूगल के ऊपर कैमल यूरिन को हेल्थ के हिसाब से रिसर्च करना है तो बहुत सी रिसर्च आपके सामने आ जाएंगी, और जिसमें ये खास तौर पर एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी की खसूसियात जो है ना ये कैमल यूरिन में पाई जाती हैं। बट हम आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलकर आपको एक ऐसी बात बताते हैं कि जिससे आपको इस हदीस के हवाले से होने वाले शक व शुबहात दूर हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर, जब मिसाल मैं आपको बाद में देता हूं, पहले आपको रेफरेंस दे दूं। जब आप बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2161378
6055, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 677, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 70, मसनद अहमद की हदीस नंबर 547, नसाई शरीफ की हदीस नंबर 1346 और दारे कुतनी शरीफ की हदीस नंबर 452, 457, 6052 और 459, कंजुल अमाल हदीस नंबर 26362 और 26365 और 26375। ये जो मैंने अभी आपको रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, इन रेफरेंसेस के साथ हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि पेशाब से बचो, पेशाब से बचो, पेशाब से बचो, पेशाब से बचो, पेशाब से परहेज करो। और कब्र का अजाब जो है ना, ये ज्यादातर पेशाब से ना बचने की वजह से आता है। अब मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी जगह पे, अगर एक मौका पे, लास्ट ओनली ओपन चैलेंज टू द बशारत मुगल एंड इस्लामिक इंजीनियर, ये एक हदीस के अलावा, एक मौके के अलावा कोई और हदीस का रेफरेंस नहीं दे सकते। ओपन टू चैलेंज टू एवरीवन कि ओपन चैलेंज ये है कि एक हदीस, एक मौके के अलावा इन लोगों को चैलेंज ये साबित नहीं कर सकते कि किसी और ने भी कैमल यूनिट पिया है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों ने पिया जो मुर्तद हो गए थे, जो मुनाफिक थे, जिन लोगों के पेट फूले हुए थे, और बाद में कैमल यूरिन को हराम करार दे दिया गया क़यामत तक के लिए। ये जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दिए हैं, ठीक है, दारे कुतनी शरीफ की हदीस नंबर 452 जिनमें इंक्लूड है, इनके साथ जो है पेशाब क़यामत तक के लिए हराम है और इससे बचना भी फर्ज है। अगर कोई ना बचेगा तो अज़ाब कब्र होगा उसके ऊपर। अब ये वाली हदीस तो ये दिखा ही नहीं सकते, इसके ऊपर इतराज नहीं कर सकते क्योंकि ये मनसूख हो गया। मिसाल के तौर पर ऐसे पहले मुसलमान शराब पिया करते थे, मेरी शराब वाली जो स्ट्रीम है उसमें मैंने सारे रेफरेंस दे दिए हुए हैं। अभी कोई बोलेगा तो अभी मैं रेफरेंस दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे कि पहले शराब मुसलमान पिया करते थे, बाद में मनसूख हो गई और लोगों ने बाजारों में गिरा दी शराब, पानी की तरह बहा दी, क्योंकि वो बाद में हराम हो गई थी तो उसको बाद में छोड़ दिया गया। इसी तरह बाइबल के भी बहुत से वर्सेस हैं कि जो बाद में मनसूख हो गए, जैसे कि नए अहदनामे में पुराने अहदनामे को आकर मनसूख कर दिया, और इसी तरह कुरान के कुछ वर्षों को भी खुदा ने मनसूख किया। और इसी तरह ये शराब वाली या शराब पीने की जो बात है, इसको बाद में ये वो हदीस मनसूख हो गई है, खत्म हो गई है, ये कानून खत्म हो गया है और अब तक क़यामत तक शराब जो है ना, शराब की तरह ऊंट का पेशाब हराम है और किसी भी जानवर का पेशाब हराम है और कोई भी पेशाब हराम है, क्योंकि लफ्ज पेशाब का है तो पेशाब किसी का भी हो सकता है, तो पेशाब हराम है अकॉर्डिंग टू द इस्लाम। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं एक रेफरेंस देता हूं बाइबल का और उसके बाद और आपको रेफरेंस देता हूं बाइबल के। सिर्फ एक दो रेफरेंस मेरे रह गए हैं, बाद में दोस्तों से मैंने बात करनी है, ठीक है। लेकिन अभी तक ना बशारत मुगल आया है ना इस्लामिक इंजीनियर आया, इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। अच्छा जी, जब हमने पढ़ना है किताब इस्तिस्ना पढ़नी है, चैप्टर 14 पढ़ना है, वर्स 7 पढ़ना है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है कि ऊंट नहीं खा सकते आप लोग। भाई लोगों, आप लोग ऊंट का भी नहीं खा सकते अकॉर्डिंग टू द बाइबल। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि बाइबल में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ऊंट के जो पांव होते हैं ये चिरे हुए नहीं होते। ऊंट के जो पांव होते हैं ये चिरे हुए नहीं होते, तो इसलिए लिहाजा आप ऊंट को, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं आगे लेके चलता हूं। चंद रेफरेंस नोट कीजिए। जब आप पढ़ते हैं गिनती किताब चैप्टर 19 वर्स 4, गिनती किताब चैप्टर 19 वर्स 18, गिनती किताब चैप्टर 19 वर्स 19, गिनती किताब चैप्टर 19 वर्स 21, गिनती की किताब चैप्टर
9 वर्स 13, इब्रानियों की किताब चैप्टर 9 वर्स 13 है, ठीक है। ये जो रेफरेंस आप पढ़ते हैं, इसके अलावा मैं आपको और रेफरेंस देता हूं। अखबार की किताब चैप्टर 3 वर्स 2, अखबार की किताब चैप्टर 17 वर्स 6, अखबार की किताब चैप्टर 3 वर्स 13, अखबार की किताब चैप्टर 4 वर्स 17, अखबार की किताब चैप्टर 7 वर्स 2, अखबार की किताब चैप्टर 1 वर्स 5, अखबार की किताब चैप्टर 16 वर्स 14, अखबार की किताब चैप्टर 16 वर्स 15, अखबार की किताब चैप्टर 16 वर्स 19, और इसके बाद अखबार की किताब चैप्टर 5 वर्स 9, अखबार की किताब चैप्टर 3 वर्स 8, अखबार की किताब चैप्टर 4 वर्स 34, अखबार की किताब चैप्टर 4 वर्स 13, अखबार की किताब चैप्टर 4 वर्स 25, अखबार की किताब चैप्टर 1 वर्स 11, अखबार की किताब चैप्टर 14 और वर्स 27 टा 51, अखबार की किताब चैप्टर 4 वर्स 18 और वर्स 6 और वर्स 16, अखबार की किताब चैप्टर 14 वर्स 49 था 53, हिजकील की किताब चैप्टर 43 वर्स 18। यहां पे लिखा हुआ है कि घर में खून को छिड़को, छट्टे मारो अपने घर में खून के, कुर्बानी के खून के छट्टे मारो, इर्द गिर्द दाएं बाएं चौखटों पर, दरवाजों पर, चौगाठों पर छट्टे मारो खून के, ब्लड के। लेकिन एक और बहुत पॉपुलर रेफरेंस मैं आपको देने लगा हूं, वो कौन सा है? अखबार की किताब है चैप्टर 14 है, वर्स 49 था लेकर 53 तक पढ़ना है। दोबारा सुन लें, अखबार की किताब है चैप्टर 14 है, वर्स 49 से आपने 53 तक पढ़ना है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? मफहूम आपको बताने लगा हूं कि घर को पाक करने के लिए 2 परिंदे लेने हैं, एक देवदार की लकड़ी लेनी है, एक सुर्ख कपड़ा लेना है, एक जूफा लेना है। तो इनको परिंदों में से एक को मट्टी के किसी बर्तन में बहते हुए पानी में ज़िबा करके, फिर वो देवदार की लकड़ी और जूफा और सुर्ख कपड़ा और इस जिंदा परिंदे को लेकर इनको इस ज़िबा किए हुए परिंदे के खून में और इस बहते हुए पानी में गोते देकर और 7 बार इस घर पर छिड़कें, तो परिंदे और कपड़ा और लकड़ी की वजह से जो है ना घर पाक हो जाएगा। और जिंदा परिंदे को किसी खुली जगह में मैदान में आपने छोड़ देना है। ये कुफारा है, ये कोड और सिर्फा के मर्ज के लिए, कोड के मर्ज के लिए मफहूम आपको बताने लगा हूं। जब किसी को अकॉर्डिंग टू द बाइबल कोड हो जाए तो उसको क्या करना है? उसको चाहिए कि वो परिंदे ले। कितने परिंदे? 2 परिंदे लेने हैं। 2 परिंदे लेकर एक को किसी मिट्टी के बर्तन में ज़िबा करना है, बहते हुए पानी में ज़िबा करके। सुर्ख कपड़ा लेना है कि देवदार की लकड़ी लेनी है, जूफा लेना है, उसको लेकर फिर जिंदा जो परिंदा दूसरा आपके पास बच गया है, उस जिंदा परिंदे को, लकड़ी को, कपड़े को, ठीक है, आपने जूफा को आपने उस बहते हुए खून में और पानी में डुबोना है, गोते देने, गोते। या सबसे पहले तो जानवर के साथ कितना परिंदे के साथ जुल्म हो रहा है कि पानी में बेचारे को गोते देते जान। जिंदा परिंदे की बात कर रहा हूं, एक को ज़िबा करने और दूसरे को, जो जिंदा परिंदा दूसरा है, उसको उसी परिंदे के ब्लड में गोते देने हैं, उसमें पानी में गोते देकर फिर उसको दीवारों के ऊपर घर में उसी से ऐसे ऐसे करके ना जो है ना बाजू के साथ पकड़कर उसको ना घुमा घुमा कर छट्टे लगाने घर में, ठीक है। और छट्टे लगा जब लग जाए तो उस परिंदे को ना, जिंदा परिंदे को किसी खुली जगह में मैदान में छोड़ देना है। वो जिंदा बचेगा, जब गोते देने वो तो मर जाएगा। जब ऐसे घुमा घुमा कर उससे छट्टे लगाने हैं, उसकी तो गर्दन टूट जानी है, तो वो कैसे जिंदा बचेगा? इस तरह की यार ये कौम है, कोड के मर्ज को भगाने के लिए कैसे अमल किए जा रहे हैं। अब लास्ट बात है, सिर्फ 1 मिनट में आपका लूंगा, उसके बाद दोस्तों से बात करूंगा। तुझको मैंने इल्मी जवाब दे दिया, अब मैं अपने तरीके से जवाब देने लगा हूं